एनपीए में आने के बाद इफ़ आई लुक टूवर्ड समवन जिसके जैसा मुझे अगर बनना है, तो दिस इज़ अ गाय. सो he is from Madhya Pradesh and going to Madhya Pradesh cadre. And rest, I think you have heard me lots of time. I would like you people to interact with Adi first, and let's see what he has to tell you about UPSC and about prelims. So, Mishra. Hi guys, and Safin is kind enough to say that he wants to be like me, but everybody knows that this journey of UPSC, it's unique. It was different for Safin, and it is different for me. It will be different for you as well. But thing is, now it's the time to restrict our sources, right? This is a tapered journey. So we have read many sources. Now just before the prelims, I want you to taper it down to few specific sources. I know जैसे ही आप एक सोर्स पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि शायद दूसरे सोर्स में कुछ ज्यादा अच्छा मिल जाएगा या दूसरे सोर्स से मुझे ये आंसर मिल जाएगा. और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते वक्त बहुत लोग ये गलती करते हैं कि एक क्वेश्चन किसी और सोर्स से आने के बाद दे शिफ्ट टू दैट सोर्स, लीविंग बिहाइंड उनका ओरिजिनल सोर्स जो होता है. सो दिस इज वन मिस्टेक दैट आई डिड इन माई फर्स्ट प्रीलिम्स. Fortunately, I was able to clear it. But this is one learning that I got, and for my subsequent attempts, I changed this thing. Never try to maximize your sources. Now is the time to taper down, restrict to few sources and trusted sources. And trusted doesn't mean only one or two coaching institutes which are very famous. Be it Wajiram, be it Insights, be it any other coaching. I'm not restricting you to any other source. I'm saying whatever source you have followed till now, be it any website, you trust that source and follow that thing. So this is the first thing that I would request you to do, that is to trust yourself, trust your sources and move forward. The second important thing is, let's come to topics, and specifically I don't want you to go into ancient history or things जिसके 5-6 क्वेश्चन आएंगे जो किसी को नहीं बनने वाले. So it's better. मैं तो बहुत खुश होता था जब एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे टफ क्वेश्चन आते थे, बिकॉज आई न्यू कि मैंने तो पढ़ाई नहीं की पर जिन्होंने पढ़ाई की उनको भी नहीं बन रहा है. So this was one thing I really used to cherish. क्योंकि हमें यहाँ पर आपको आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है. एंड आई थिंक एनी टाइम यू गेट मोर देन 120, दैट्स अ सेफ स्कोर. सो यू डोंट हैव टू एम फॉर 200, you just have to maximize your score and get past 120 mark. So first important thing is, start with easy things but which are very scoring. For example, I would request you to start revising polity, because we all know that sources are very restricted in polity. First is Lakshmikant. I think if you have read Lakshmikant 2 or 3 times and if you are able to revise at least Lakshmikant only, I think majority of your polity portion would automatically get covered. Another important thing that I would request you to do is, do not blindly do revision of Lakshmikant. So what I want you to do is, suppose उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के एक सेक्शन है जिसमें पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पूरा होता है, पार्लियामेंट रहता है, सुप्रीम कोर्ट रहता है. साइमल्टेनियसली जो अपने स्टेट लेवल पे मशीनरी रहती है, हाई कोर्ट रहता है, स्टेट गवर्नमेंट्स रहती हैं, गवर्नर रहता है, प्रेसिडेंट रहता है. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कंपैरेटिव स्टडी. सो वंस यू रीड प्रेसिडेंट, साइमल्टेनियसली गो एंड रीड गवर्नर. एंड देन कंपैरेटिव 1 पेज शीट बना लो आप अपनी कि इसमें यार मैंने गवर्नर ने ये पढ़ा था, प्रेसिडेंट में ये पढ़ा था. So not only it will help you to retain more, but at the same time you'll be more confident कि अगर मैंने ये गवर्नर में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट में पढ़ा था. If it's in a chart form, if it's in 1 page, then I think it really helps. So one thing is, polity में comparative study पढ़ना है. Whenever you read Supreme Court, simultaneously go and read High Court and District Courts. So parallelly आप अगर इसको complete करते जाएंगे तो monotonous नहीं होगी. और लक्ष्मीकांत you can do in maybe 3 or 4 days. You can do this thing. फॉर करंट अफेयर्स एंड जो क्या कहते हैं करंट अफेयर्स का पॉलिटी का सेक्शन होता है, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग एनी अदर सोर्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू एंड स्टिक टू दैट सोर्स. डू नॉट चेंज दैट सोर्स. But at the same time, if you have not followed anything till now, then I would request you to go and read prelims 365 of Vision IS. I think it's sufficiently detailed. At the same time, majority of questions you can answer using that. So my personal source was prelims 365 by Vision IS. So that is one thing that I would want you to do in polity. Moving on to next scoring section that I think you can maximize your score is in economics. आई थिंक इकोनॉमिक्स में सबने जिन्होंने थोड़ी सी भी क्या बोलते इसके लिए पढ़ाई प्रिपरेशन कर रहे हैं एटलीस्ट 3 or 4 मंथ से, दे मस्ट हैव गॉन थ्रू बेसिक्स इन एनसीईआरटीज, और कोई ने मृणाल के लेक्चर्स देखे हों या वट एवर सोर्स दैट यू आर फॉलोइंग. आई वॉन्ट यू टू स्टिक टू दैट सोर्स. ये नहीं कि टेस्ट सीरीज में एक भी आपको नया क्वेश्चन दिख गया तो यू शिफ्ट योर सोर्स. So first is that I personally used to do all the NCERTs 9, 10, 11, 12 specifically macroeconomics वाली जो 12th की NCERT है. I used to do it thoroughly because उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आ जाते थे. And at the same time
I used to personally prefer Mrunal's lecture because I think that Mrunal's lecture were one of the best, detailed, at the same time they were very informative. So I used to feel very confident Mrunal के lectures के बाद कि यार ये एक चीज़ है जिससे मैं confident हो जाता था कि at least I can try and do maximum questions. और मृणाल के लेक्चर्स में पीपल माइट नो कि आजकल मृणाल अनअकैडमी पे पढ़ा रहा है, पर जिनको अनअकैडमी पे नहीं सब्सक्रिप्शन लेना है उनके लिए मृणाल के जो लास्ट 2 years के वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हो. इट गिव्स यू द सेम काइंड ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज जो आपको सिर्फ फैक्ट्स चाहिए होते हैं वो इस बार के बजट के चाहिए होते हैं. तो वो फैक्ट्स आप इकोनॉमिक सर्वे या बजट की समरी, चाहे आईएएस बाबा की हो या इनसाइट्स ऑन इंडिया की हो, किसी की भी आप समरी लेके कर सकते हो. बट मृणाल के लेक्चर्स अगर आप पिछले साल की भी देख लोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एंड हाउ WTO वर्क्स एक्सेट्रा, अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो आई थिंक मोर और लेस इकोनॉमी के आप 70 to 80% क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर सकते हैं. This is the second thing. Now the third important thing that I want you to focus is history. History में let me be very clear. प्रीलिम्स के लिए आपको सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करनी है. प्लीज डोंट गो फॉर एंशिएंट या मेडिवल हिस्ट्री. 2 से 3 क्वेश्चन के लिए 2 बुक पढ़ना इज वर्स एज कंपेयर टू एक बुक. अगर बिपिन चंद्र आप पढ़ रहे हो तो आप बिपिन चंद्र कंटिन्यू करें प्लीज. अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो प्लीज कंटिन्यू विद स्पेक्ट्रम. या अगर कोई मैकबुक पढ़ता है अरिहंत से तो वट एवर सोर्स दैट यू हैव बीन फॉलोइंग, जस्ट कंटिन्यू विद दैट सोर्स. But at the same time, just revise modern India first. Don't go for ancient and medieval. बहुत लोगों को ऐसा होता है, जो मेरे साथ भी हुआ था, कि हम डर के मारे इस समय ancient की NCERTs खोलने लगते हैं, ancient की बुक्स खोलने लगते हैं, CCRT खोलने लगते हैं. So don't go for that. Just revise modern India. आप अगर modern India भी ढंग से कर लेते हैं तो एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ, अगर 30 से 40% क्वेश्चंस भी आपके हिस्ट्री में कवर हो गए हैं, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ, क्योंकि अभी हमें मैक्सिमाइज करना है स्कोर. सो आप पहले मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करें, उसके बाद इफ यू हैव डन मॉडर्न इंडिया और किसी को और फिर नेक्स्ट सोर्सेज में जाना है, सो द बेस्ट थिंग दैट आई यूज्ड टू डू इज, पिछले आपने 5 to 10 years के आप क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, उसमें से एंशिएंट हिस्ट्री को पहले टारगेट कीजिए, क्योंकि एंशिएंट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. उसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, रिलीजन, सूफी मूवमेंट, सूफिज्म एक्सेट्रा, इनसे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस. तो इनकी आप कहीं से भी समरी पढ़ सकते हैं. पर्सनली मैं क्या करता था, मैं अनअकैडमी पे जाता था और अनअकैडमी पे स्पेसिफिक टॉपिक्स ढूंढता था. मतलब जैसे अगर मुझे IVC या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, सो आई यूज्ड टू गो ऑन अनअकैडमी and I used to type Indus Valley Civilization. उसमें यास्मिन गिल के बहुत अच्छे वीडियोस हैं. So you'll get specifically एक उसके 15 मिनट की वीडियोस में आपको पूरी 2 NCERT के चैप्टर्स की जिस्ट मिल जाएगी. एंड ट्रस्ट मी, सारे क्वेश्चंस वहां सॉल्व होते थे. मैंने आज तक जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो अनअकैडमी में स्पेसिफिक टॉपिक्स ढूंढ के किए हैं. कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 15 मिनट का एक वीडियो देखा अनअकैडमी पे, एंड देन क्या बोलते हैं, उसमें से जो भी उसकी PPT में पॉइंट्स थे उसको एक पेज में नोट डाउन कर लिया, एंड आई थिंक इट वॉज मोर देन इनफ. और अगर इसके बाद भी आपका मन नहीं मानता और आप जिज्ञासु आदमी है और आपको पढ़ने का बहुत मूड है, तो आप क्लास 12th के NCERTs पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने पर्सनली नहीं, मैं प्रेफर करता हूं, क्योंकि कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस उसका बहुत रेशियो बहुत कम रहता है. और आई थिंक 27 days में यू शुड फोकस मोर ऑन थिंग्स दैट कैन गेट यू मोर मार्क्स. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आई थिंक मेनी पीपल टिल द लास्ट मोमेंट वो उसको छोड़ते रहते हैं कि हमें साइंस एंड क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी हमने नहीं पढ़ा है, या हमने कल इसको छोड़ रखा है. तो उसके लिए आई थिंक द बेस्ट सोर्सेज विजन IAS के 2 साल के आप प्रीलिम्स 65 कर लीजिए. आई थिंक उससे बाहर से कुछ आता नहीं है, और उससे बाहर से कुछ आएगा भी तो यू वोंट बी एबल टू डू इट. सो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको मैं बस एक ही सजेशन दूंगा कि प्लीज आप पहले पैटर्न देख लो कि हर बार स्पेस में से एक क्वेश्चन आ रहा है, टेक्नोलॉजी जो इंडिया बना रही है उसमें से आ रहा है, CSIR के कोई नई इन्वेंशन है उसमें से आ रहा है, कोई WHO की मेडिसिन या कोई बीमारी चल रही है अगर उसमें से आ रहा है. तो अगर आप इन चीजों को भी कर लेंगे तो आई थिंक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. फोर्थ इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एरिया इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आई थिंक आपने जो भी फॉलो किया हो, आई यूज्ड टू फॉलो, मैंने यूट्यूब पे जो रोमन सैनी के वीडियोस थे, जब उन्होंने पहली बार अनअकैडमी स्टार्ट की थी, तो द फर्स्ट थिंग दैट ही अपलोडेड वाज वीडियोज ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. आई यूज्ड टू फॉलो दैट ओनली. मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा. Some people go for Shankar IAS. If you are comfortable with that, you can go. But I think it's really very detailed और उतने डिटेल्स में आता नहीं है. Because आप बहुत सारी चीज पढ़ लेंगे तो आप किसी भी चीज पे स्टिक नहीं कर पाते हैं. तो उससे अच्छा एक मैं आपको सजेशन जो मैं पर्सनली फॉलो करता था वो ये था कि मैं शंकर IAS का इंडेक्स पेज फाड़ लेता था. फर्स्ट और सेकंड पेज जिसमें इंडेक्स में उसने जो लिखा हुआ है कि क्या क्या टॉपिक उसने अंदर कवर किए, आई यूज्ड टू टीयर देम, और उसके बाद मैं उन टॉपिक्स का विकिपीडिया कर लेता था. अगर उसमें कन्वेंशंस का पेज है तो मैं उसमें कन्वेंशन, उसमें फर्स्ट कन्वेंशन है बॉर्न कन्वेंशन, आई यूज्ड टू गो एंड रीड विकिपीडिया का पेज, एंड देन आई यूज्ड टू टिक ऑन दैट इंडेक्स पेज कि बॉर्न कन्वेंशन आई हैव कवर्ड. सिमिलरली कोई और अगर उसमें कन्वेंशन है तो आई यूज्ड टू कवर कि भाई
कोई भी कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कन्वेंशन है एक्सेट्रा, जो भी कन्वेंशन है, तो आपको कन्वेंशन, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे इंडेक्स पेज से शंकर आईएएस के, एंड देन यू शुड रीड ओनली विकीपीडिया. आई डोंट थिंक इससे बहुत डिटेल में, इससे ज्यादा बाहर का कहीं आता है. क्लियर, मैं तो बोलूंगा कि आप सिर्फ विकीपीडिया ही कर ले अगर इंडेक्स पेजेस का. सो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता. एंड प्लीज डू रिवाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ क्या चीज हमें स्पेसिफिकली करनी है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज रियली स्कोरिंग, बट इफ यू हैव रेड करेक्टली, तो आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, 8th 9th 11th 12th ये 4 एनसीईआरटीज पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली. उसके बाद अगर इफ यू हैव ऑलरेडी रेड गोची लियोंग, देन आई रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू विद गोची लियोंग. एक रीडिंग गोची लियोंग की पार्ट 1 की एटलीस्ट आप कर लें. पार्ट 2 टाइम परमिटिंग वाला है. अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो आप पढ़ सकते हो कि टेम्परेट रीजन में कैसा होता है, क्या बोलते हैं, डेजर्ट रीजन में क्या होता है एक्सेट्रा. अगर आपके पास टाइम नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्किप दैट थिंग. उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको एक चीज बता सकता हूं. आप एक काम कर सकते हैं, एक वेबसाइट है दैट्स कॉल्ड PMFIAS, पुअर मैन्स फ्रेंड, PMFIAS करके एक वेबसाइट है. उसमें आपको ज्योग्राफी का फ्री और बहुत ही ल्यूसिड मटेरियल मिल जाएगा. उसमें आपको टॉपिक पूरा आर्टिकल वाइज दिए गए. सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू एंड कंप्लीट ज्योग्राफी फ्रॉम देयर. उसमें उन्होंने एनसीईआरटीज के कलेक्शन दे रखे हैं, उसने गोची लियोंग से कलेक्शंस बना रखे हैं. वो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से उसने समझाया है और फोटोग्राफ्स लेके समझाया है, सो इट रिटेन्स इन योर मेमोरी. So if you have not read geography till now and if you really want to do this thing, I think you should go to PMFIAS, read the articles, make short notes, one note, एक या दो पेज के आप उसमें नोट्स बना लीजिए, and I think that would suffice this time. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक बहुत सारे लोग छोड़ते हैं वो होता है वर्ल्ड मैप. मैं स्पेसिफिकली हर प्रीलिम्स के लिए अलग से वर्ल्ड मैप करके जाता था, और उसके लिए मैंने एक ही चीज करता था कि एक दिन में वर्ल्ड मैप या इंडिया का मैप नहीं प्रिपेयर हो सकता. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, इन लास्ट 30 डेज में मैं रोज एक मैप प्रिपेयर करता था. फॉर एग्जांपल, अगर आज 27th डे है, तो मैं जैसे आज किसी एक स्टेट की क्या बोलते हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आज पढ़ता था और उस स्टेट का मैप बना के रख लेता था. सेकेंड चीज, अगर मुझे ऐसा कभी लगता था कि आज मुझे बायोस्फीयर रिजर्व्स करना है, तो सारी एक मैप पे बायोस्फीयर रिजर्व्स. एंड व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन कि आप उसको मैप पे बनाएं, बिकॉज अगर आप उसको मैप पे बनाते हैं तो आपको रिटेन होता है कि ये कौन से स्टेट में. अदरवाइज आप कितनी बार भी चार्ट्स पढ़ सकते हैं, आप कितनी बार भी आपने टेबल में पढ़ लिया होगा कि नंदा देवी कहाँ है, बट एग्जाम में जब बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं तो यू गेट कंफ्यूज्ड. सो द बेस्ट थिंग इज, आप इंडिया के, जैसे हम 10th और 9th क्लास में करते थे, आप इंडिया के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप खरीद लीजिए और उसमें रोज एक, जैसे आज आप बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ने वाले हैं तो आप बायोस्फीयर रिजर्व्स को पढ़ के देख लीजिए. अगर आप कुछ और चीज पढ़ने वाले हैं तो वट एवर यू थिंक, जस्ट डू मैपिंग, बिकॉज जैसे ही आपका माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन बनता है, द रिटेंशन इंक्रीजेस. सो दिस इज वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू मैप्स, पर्टिकुलरली विद इंडिया. नाउ वर्ल्ड मैप को कैसे याद करें, जो क्वेश्चंस आते हैं कि ब्लैक सी के सराउंडिंग में क्या है, कैस्पियन सी के सराउंडिंग में क्या है, तो उसके लिए आई यूज निमोनिक्स. उसके लिए क्या होता है, आप यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे आप लिखिए निमोनिक्स फॉर लर्निंग यूरोपियन कंट्रीज, और निमोनिक्स फॉर साउथ एशिया, निमोनिक्स फॉर नॉर्थ अमेरिका. सो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दिए गए निमोनिक्स बना बना के, विच विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग कि कैसे सेटल हुआ है मैप. सो अगर आप वो कर लेते हैं, और रोज एक भी, अगर आप रोज, मैं तो बोल रहा हूं आप रोज सिर्फ, जैसे आज आप, अगर आज आप बैठे हैं फ्री, आप डिनर करते वक्त एक बार वीडियो चला लीजिए यूट्यूब पे एंड ट्राई टू वॉच निमोनिक्स फॉर यूरोप. उसमें बहुत अच्छे, एंड विल प्रोवाइड लिंक्स ऑल्सो. जो वीडियोस मैं पर्सनली देखता था, विल प्रोवाइड लिंक ऑल्सो, सो दैट इट विल हेल्प यू टू डायरेक्टली गो टू दोज वीडियोस एंड लुक इनटू दैट. तो आप उनको आप खाना खाते वक्त 2-3 बार भी देख लेंगे ना, तो आपको रिटेंशन हो जाएगा कि हाँ यार, मेडिटेरेनियन सी के आसपास ये कंट्रीज लगती थी. बहुत अच्छे निमोनिक्स एंड इट विल हेल्प यू रियली. सो अब वर्ल्ड मैप इज समथिंग दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू, बिकॉज ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो मेक अ ब्रेक होते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने से अच्छा है वर्ल्ड मैप पढ़ने. इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स डिफरेंट, एंड इफ यू लर्न विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स, इट विल बी मच मोर, द रिटेंशन विल बी मच मोर. So this is one thing that I'd request you to do right now. With respect to, so this is, I think, Safin, this is more or less the things that I used to follow for prelims. Okay. And at the same time, current affairs के लिए चलते Vision IAS के, I used to do personally, I used to do 365 Vision IAS. And but some people do prefer Wajiram's books. So any book that you have been, that you are following till now, I think you should continue to follow that thing. And please be confident. The only thing that matters right now is your confidence. If you are confident, I think you are going to get through this prelims no matter what happens. So this is one thing that I really believed in, that if you are confident, I think nobody can stop you. Or prelims is very easy, and I think most of you will. I think all of you will definitely clear it. And please restrict your sources. Be very specific. Read and revise the things that you have already read. Do not go for anything else. Another important thing that I actually skipped was test series.
So this is the most important point with respect to prelims preparation. So test series में आई वुड रिक्वेस्ट यू, जो दिल्ली में है वो फोटोकॉपी उठा सकते हैं सारी टेस्ट सीरीज की, जो दिल्ली में नहीं है उनको आई प्रोवाइड यू, मतलब हम यहाँ पर आपको आई प्रोवाइड यू द फोन नंबर ऑफ दैट फोटोकॉपी शॉप. हिल मेल इट टू यू, और वो आपको पोस्ट में 2 या 3 दिन में आपके घर में जिस भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल चाहेंगे या टेस्ट सीरीज चाहेंगे, इट विल रीच टू यू इन वॉट एवर प्लेस ऑफ इंडिया यू आर. और उसमें से आप एक काम कर सकते हैं, आप सुबह 9 से 12 रोज एग्जामिनेशन हॉल के मतलब जस्ट मेक श्योर कि एटमॉस्फेयर वो सेम रहे. You sit for 3 hours, try to solve that paper. 9 से 12 आपने पेपर सॉल्व किया, 12:30 से लेके 2:30 तक उसके सॉल्यूशंस पढ़िए, नॉट मोर देन दैट. बिकॉज क्या होता है कि बच्चे 3 घंटा पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद 10 घंटे सोल्यूशन पढ़ते हैं, उससे कोई फायदा नहीं पड़ने वाला है. और टेस्ट सीरीज भी ऐसी नहीं उठानी चाहिए जिसके सोल्यूशंस में 10-10 पेज दिए हो हर आंसर के. बिकॉज क्या बोलते हैं, वो क्लेम तो कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे, पर वो ये नहीं बताते हैं कि हमने टेस्ट सीरीज में 10,000 क्वेश्चन पूछे थे, 10,000 में से ऑब्वियसली कोई फंसेंगे क्वेश्चन. सो उससे बेटर क्या होता है कि आप जो भी टेस्ट सीरीज करें जिसके बहुत स्पेसिफिक और पॉइंटेड आंसर्स दिए हो, आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ें. तो मैं पर्सनली प्रीफर करता था विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसकी मैं फोटोकॉपी उठा लेता था मार्केट से, एंड आई यूज्ड टू डेली सॉल्व डेली सॉल्व 1 पेपर 3 आवर्स. सुबह 9 से 12 पेपर सॉल्व करते थे, और 12 से 12:30 to 2:30 आई यूज्ड टू रीड द सॉल्यूशंस, दैट्स इट. उसके बाद वो पेपर बंद, और उसको अगर आपको रिवाइज करना है तो जस्ट रिवाइज इट नेक्स्ट डे. उसको 20 मिनट या आधा घंटा आप नेक्स्ट डे रिवाइज कर लेंगे तो जितना भी रिटेंशन होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको 100% रिटेन हो जाएगा, बट स्टिल जितना भी रिटेन होगा, अगर 50% भी रिटेन हो जाता है तो आपका काम हो गया है. यहां पर आपको सिर्फ अपना काम निकालना है. तो टेस्ट सीरीज इज रियली इंपॉर्टेंट, और लास्ट दिन तक टेस्ट देना है. कोई भी मतलब आई थिंक वो झूठ बोलता है जो बोलता है कि हमने टेस्ट नहीं दिए हैं या आखिरी दिन हम टेस्ट देना बंद कर देते हैं. तो मेरे हिसाब से, मेरी फिलॉसफी लोगों से अलग है. मेरे हिसाब से आप आखिरी दिन तक टेस्ट देते रहें, क्योंकि आपको अगर कॉन्फिडेंस है और आप टेस्ट देते रहते हैं तो यू नेवर नो कौन से दिन का क्वेश्चन आपको कहां टेस्ट किस फॉर्म में आपको फंस जाए. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं फंस सकता है, बट कोई ऑप्शन किसी क्वेश्चन में कुछ रेलेवेंट था, वो किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, तो वहां वो आपको इट रियली हेल्प्स. आप टेस्ट सीरीज देंगे, और प्लीज मार्क्स कैलकुलेट करने पे मत जाए कि यार मैंने टेस्ट दिया और मेरे मार्क्स कम आए तो आई हैव स्टॉप्ड रीडिंग, कि नहीं मैं अगले साल दूंगा. आई थिंक मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. उस दिन पे आपके कितने मार्क्स आते हैं, यूपीएससी नेवर आस्क कि आपने फलाना की टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आए थे या किसी और दिन आपके कितने मार्क्स आए थे. आई थिंक उस दिन जो आपके मार्क्स आते हैं वो आपका जर्नी डिसाइड करते हैं आगे की. सो टेस्ट सीरीज रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप एक टेस्ट सीरीज मुझसे पूछेंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने कोई नहीं की है तो आप विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज की फोटोकॉपी मंगा लीजिए. आई विल प्रोवाइड यू द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट पर्सन विल सेंड यू द फोटोकॉपीज जो भी टेस्ट सीरीज की होंगी, एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 1 पेपर. और अगर आप एक पेपर भी सॉल्व करते जाएंगे तो आई थिंक 27 डेज में इफ यू आर डन विद 27 पेपर्स, आई थिंक 2700 क्वेश्चन से ऊपर, तो आई डोंट थिंक उससे ज्यादा कुछ आपको लगेगा. सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू. आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स इन 11 days ऑल्सो. आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स इन 1 year ऑल्सो. सो मैं तीनों तरीके से प्रीलिम्स क्लियर किया, एंड द ओनली थिंग दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू इज टू रिस्ट्रिक्ट योर सोर्सेज, maximize your score, try to maximize your score. Don't go blindly for ancient की रीडिंग और medieval की रीडिंग, because I don't want you to read medieval. अगर मैं सच बोलूं तो कोई जरूरत नहीं है medieval पढ़ने की, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन है, और अगर ज्यादा medieval आ जाती है तो खुश हो जाना, क्योंकि जो पढ़ के आए उनको भी नहीं बन रही है. So I used to be really happy, क्योंकि हम जो पढ़ के आए हमें वो बन जाना चाहिए, that's it. So this is the only thing that I used to follow, and बाकी Safin will help you जो भी if you have any doubts. So regarding prelims, मैंने 2 बार क्लियर किया है, आदि ने 3 बार क्लियर किया है, और दोनों का जो समरी था वो पूरा आदि ने बता ही दिया है क्या क्या है. टेस्ट सीरीज के बारे में जो मार्क्स है मैं पहले भी बोल चुका और फिर भी बोलता हूँ, इट्स पार्ट ऑफ योर इवोल्यूशन, नॉट योर इवेल्यूएशन. इवेल्यूएशन लास्ट डे पे जब प्रीलिम्स में एग्जाम देने जाते हैं तभी होता है. तो स्कोर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. व्हाट इंपॉर्टेंट इज हाउ मच यू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू डू, एनालाइज योर मिस्टेक एंड ट्राई नॉट टू रिपीट द सेम इन द नेक्स्ट टेस्ट. सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस. रिगार्डिंग वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक यू Adi to answer is that this is 1 month, this particular 1 month is very, you know, I can say pressure बनाता है दिमाग पे. जब मेरे साथ मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था तो आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप इवन, यू नो. मैंने बोल दिया था अपने घर को भी कि अगर मैं पागल भी हो जाऊं तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, यूपीएससी का फॉल्ट है. सो इस काइंड का एक प्रेशर होता है. ऐसा होता है कि होगा कि नहीं होगा, इतना सारा स्टडीज किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फिर भी एक वो रहता है एंग्जाइटी. हाउ यू यूज टू कॉप अप विद दोज थिंग्स? So I think this happens with everyone and every competitive examination, and it's a natural tendency. अगर आपको ये नहीं हो रहा है then you have a problem. ये हो रहा है तो I think you are normal.
तो इसके लिए मैं मतलब सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं. सम पीपल यूज टू मेडिटेट एक्सेट्रा. मैं पर्सनली क्या करता था, एवरी डे इन द मॉर्निंग फर्स्ट 30 मिनट्स आई यूज टू डेडिकेट फॉर सेल्फ मोटिवेशन. और उसके लिए मैं तो कुछ नहीं करता था, ईयरफोन लगा के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बेन स्कॉट करके हैं, या बहुत सारे मोटिवेशनल थिंकर्स हैं. आई यूज टू जस्ट पुट ऑन माई ईयरफोन्स और 30 मिनट्स बेड पे लेटे लेटे, मैं उठता भी नहीं था और अपने आप को ये मनाता रहता था कि, सोचता रहता था, ऐसा बहलाता रहता था कि शायद पढ़ाई हो रही है. एंड आई यूज टू लिसन टू दोज वीडियोज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. आई थिंक इट हेल्प्स यू बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है. वो स्पीकर्स आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, ना ही वो आपकी पढ़ाई कराने वाले हैं. पर नेक्स्ट 23.5 आवर्स जो आपके पास 23 आवर्स 30 मिनट्स बचा है, उसको अगर आपको प्रोडक्टिव बनाना है तो वो शुरुआत के 30 मिनट्स का इन्वेस्टमेंट, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई लर्न. एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई फेलियर्स बिकॉज I have given IIT JEE also and I failed because I was not able to get the rank that I wanted to, and that is the same examination. I think examinations are same. Maybe that was in engineering entrance test. This is for something different. But I think the pressure that every candidate faces is same. हर आदमी को इतने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यही सेम प्रेशर होता है. और तब मुझे लगता था कि ये बहुत टाइम वेस्ट है, मतलब ये मोटिवेशन क्या होता है, ये सब फालतू की चीजें हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है, पढ़ लेते हैं. और मैं उस समय वो आधा घंटा बचाने के लिए कुछ नहीं करता था, ये सब ना मेडिटेट करता था ना कुछ करता था. और प्रॉब्लम ये होती थी कि उसके बाद में वो 23 जो बाकी 23 घंटे होते थे दिन के, वो भी बर्बाद कर लेता था. सो दिस इज वन थिंग दैट आई लर्न इज कि आप प्लीज सुबह उठ के सबसे पहला काम करें, अपने आप को बेवकूफ बनाएं. और अपने आप को आप बेवकूफ तभी बना सकते हैं जब आपके पास कोई मोटिवेटिंग फोर्स या फैक्टर होता है. और उसके लिए मैं तो दूसरों से लेता था. तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं मोटिवेशन के, सेल्फ मोटिवेशन, व्हाई यू शुड डू समथिंग दैट यू आर डूइंग, व्हाई इट्स टफ, इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट. सो प्लीज ट्राई टू इन्वेस्ट वो 30 मिनट्स को आप, और 27 डेज तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है. द मोमेंट यू इन्वेस्ट दिस 30 मिनट्स, आई थिंक आपके 27 डेज बहुत इजीली क्या बोलते कट जाएंगे एंड यू विल नॉट फील दिस प्रेशर. और प्लीज आप ऐसी गलतफहमी छोड़ दीजिए कि किसी जो टॉपर होने वाला है उसको ये प्रेशर नहीं है. हर आदमी को इतना ही प्रेशर रहता है आखिरी तक. So, but the only thing how you can overcome is, I think, very right question that you asked. I used to really watch those videos और मैं तो 1 घंटा देखता था. पहले 12 घंटे के लिए सुबह उठ के आधा घंटा, और उसके बाद शाम को फिर आधा घंटा देखता था, क्योंकि मेरी पावर डाउन होती थी आधे घंटे में. और उन आधे घंटे में और कई बार तो मैं एक ही एक वीडियो को इतनी बार रिपीट करके देखता था कि मतलब लोगों को लग सकता है कि मैं पागल हूं. बट इट्स एक्चुअली साइकोलॉजिकल थिंग. यू आर एक्चुअली फूलिंग योरसेल्फ टू बिलीव इन समथिंग जो आपको ऐसा लगता है फिजिकली कि इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव इन दिस पीरियड. So I want you guys to do is, please आप अपने आप को motivated रखें, be positive, and for that, if you really want many motivational videos really help, तो please आप उनके I'll provide the links to Safin, and if you can share, वो आप वीडियोस को जाके देखें, ईयरफोन में लगा के, रूम बंद करके, किसी से आपको बात करने की जरूरत नहीं है. That is the only thing I think that really helped me. Maybe many people have other techniques. आप योगा करते हैं, रनिंग पे जाते हैं, you play with your dog. I used to play with my dog as well. क्योंकि ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, बट at the end cumulatively they make a huge difference. This is one so thing. Basically what he wants to tell is जो आपने 3 Idiots में देखा है कि all is well बोल के रखना है अपने हाँ, आप को, all is well बोलना है. Yes, अपने आप को बताते रहना है कि everything is going to be fine. Recently I visited वाजीराम में अपने टीचर्स को मिलने गया था और वहाँ पे एक एस्पिरेंट मिला था मुझे. तो उसने मुझे पूछा था कि सर प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेके प्रिपरेशन एंड करने तक या एग्जाम क्लियर करने तक ऐसी कौन सी एक चीज है जो हमें ऑलवेज अपने दिमाग में रखनी है. एंड आई सेड हिम दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट इट्स जस्ट एन एग्जाम. ओके, हम उसको लाइफ एंड डेथ का सवाल बना देते हैं, जीने मरने का सवाल बना देते हैं, और इसी में फिर हम अपना जो बेस्ट है वो नहीं दे पाते. परफॉर्मेंस प्रेशर इज गुड, इट हेल्प्स यू टू एनहांस योर कैपेसिटी, बट एट द सेम टाइम अगर वो आपको ओवर पावर कर देता है देन यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड. आदि, वन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज, you cleared UPSC for 3 times, right? One time IRS and 2 times IPS. So what are those basic qualities which an aspirant must have to enter into this exam, according to you? I think this is a most difficult question that you had asked me, but 2 or 3 qualities that I think I learned during this journey. I think he rightly said it's an evolutionary process. You become the civil servant the day you decide to sit in this examination. This examination will not make you a civil servant. आप जिस दिन इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने की शुरुआत करते हैं उस दिन आप सिविल सर्वेंट बन चुके होते हैं. आई थिंक मैं सुबह उठ के रोज ये सोचता था कि मैं सिविल सर्वेंट हूं, और इसलिए नहीं कि मैं एग्जाम क्लियर करना चाहता था, क्योंकि वो जो क्वालिटीज ये एग्जाम देख रहा है, ये एग्जाम क्यों 1 साल का रखा गया है. आप प्लीज समझे, इस एग्जाम को 1 साल का रखने के पीछे एक
बहुत बड़ा मोटिवेशन है। वो चाहे तो उनको अगर 6 लाख की बच्चों की OMR क्या बोलते हैं अगर करेक्ट करनी हो तो इट कैन बी हार्डली डन इन 5 days। अगर उनको 10,000 बच्चों का मेंस कराना हो तो दैट कैन बी डन इन अनदर 1 month। एंड इंटरव्यू कराना हो 2,000 बच्चों को तो इट कैन बी डन इन 3 months। द होल प्रोसेस कैन एंड इन मैक्सिमम 4 to 5 months। तो क्यों इस एग्जामिनेशन को 1 से 1.5 साल रखा जाता है? आप प्लीज इसको समझो। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि दिस इज हाउ दे असेस यू। एक सिविल सर्वेंट के ऊपर दिन भर में इतना प्रेशर रहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट दे वांट इज परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क। और ये 1.5 साल वो यही चेक कर रहे होते हैं कि अनसर्टेनिटी में इतना प्रेशर है आप पे, इतना ज्यादा कंपटीशन है, इसमें आप अपना पॉइज मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, इसमें डू यू हैव क्लियर हेडेडनेस, इफ यू आर एबल टू क्लियरली थिंक थ्रू कि यार नहीं मैंने ये करा, इससे रिजल्ट नहीं मिला, आई शुड डू दिस थिंग डिफरेंटली एंड देन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। आई थिंक दिस इज वन क्वालिटी that every civil services aspirant should have. And why civil servant aspirant? I think any person who wants to succeed in any venture, I am not saying कि everybody should go for civil services या आपको civil services करना चाहिए। यहाँ पर we are talking very specifically about this examination. So I would request you to be self-confident, to be perseverant in whatever you do, to be hardworking. I think intelligence goes out for a toss the moment you are not doing hard work. जो भी समझता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं या आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई थिंक ही इज मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ एज वेल एज ऑफ अदर्स। Intelligence will not help you to get through this examination. It is only your hard work, dedication, perseverance, positive mindset, and the outlook that you adopt towards this examination. I think that's going to get you through. Otherwise, I don't think. I have been through both stages. When I was preparing for IIT, I thought I'm very intelligent, I'm brilliant. मिश्रा जी का लड़का बहुत कुछ धमाल करेगा. And I was in Kota. I was in the best coaching my parents could afford, and I was given the best resources. But unfortunately, I could not get a very good rank. And the thing that now 7 to 10 years down the line, which I think was that I thought that intelligence is more important than hard work. I think you should not do this mistake. Intelligence can never help you to get through any competitive scenario or success, because intelligence आपके लिए सिर्फ एक बेस बिल्ड कर सकता है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर खड़ा करना है वो आपको आपकी हार्ड वर्क से करना है. सो आई थिंक इफ यू आस्क मी, I prefer a hard working person to become a civil servant rather than an intelligent one being a civil servant. Exactly. I think this is most important. So here I would say कि आदि ने मेरा वीडियो नहीं देखा है जो आप सबने देखा है, और अगर इफ यू विल चेक इसके आंसर और उस वीडियो के आंसर, यू विल फाइंड अ लॉट मोर सिमिलरिटीज. मैंने वहां पे भी बोला है कि ये जो रेस है इसमें खरगोश कभी नहीं जीतेगा, इसमें जीतेगा कछुआ. स्लो एंड स्टेडी बट परसिवरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस एग्जाम. Regarding all your doubts and all, we had limited time, so we couldn't answer it from your comments, but we have tried to cover maximum things. I just wanted all of you to get as much as you can from this person. I am also learning, you can also learn from him, and that is where we would like to end this session. It was actually a very, very interactive and very engaging session, because I could see that number of viewers has not gone down neither on my personal page nor on this page. So stay tuned. This video will be uploaded on YouTube soon, either any of the channel with my name and with Aditya's name, and we'll be meeting again after the prelims for mains exam. And till then, if you want to solve any doubt or anything else, feel free to message me. And if you want any other IPS officers to come live with me, I'll definitely try to manage the same. Till then, any last word? I think this is very good initiative that Safin has taken. I personally feel that many people are there who cannot come to Delhi and might not get access to resources that people in Delhi might have. So I think anytime this helps, anytime you get help like this, I think you should take, and I really congratulate him for arranging all this thing. And another important thing is, I would request you to go for resources which are freely available, but people feel because they are freely available, they are not of that good quality. So I think Unacademy is one personal platform. I used to teach on Unacademy, so I might have a bias, and I'm admitting that thing. But still, I think there are many good teachers, educators on Unacademy, except myself, who really put in a lot of effort to help you. There are many good websites. You can go to Civil Coursify. These are channels that I'm talking about on YouTube. So you can go to Civil Coursify. You can go to Neo IAS. All these are free channels who will provide you good information. And I hope he'll call me again for mains preparation. What was the course you have uploaded on Unacademy? So Unacademy pe I had 3 lectures. One is specifically for mains answer writing.
because I had scored good enough in general science. So general studies के answers I have taken at least 40 sessions on Unacademy, and prelims के लिए polity के there are more than 40 videos that are uploaded on polity. And for those who are opting for political science optional, international relations have been taken by me. So these are 3 courses that I've already done. But at the same time, for mains, those who are preparing for mains, YouTube pe there are more than 12 videos that have already been uploaded by me. That was a seminar that I took in Bhopal. So that is one thing. Many people have actually said that it really helps. So if you can go through that whenever you have time, I think that's specifically for mains. But I'll try to get hold of him before mains, because I really want to share. Mains is something that will really make or break the ranks that you'll score in this. So we'll stay in touch, and whatever information that I'll have to pass, I'll give it to Safin, and he'll do the needful. So he's going to get hold of me, and before he completely holds me, let's take bye-bye and wish you all the best for upcoming prelims exam. Do your best, and it's just an exam. Give it with full of confidence. It's a game of confidence only, and may Almighty be with you. Thank you. Bye guys, all the best.